Now, this is the diagram for the path difference in Michelson interferometer. In last video lecture, I already explained you the construction and working of the Michelson interferometer. So, in last video lecture, this all this thing I explained you that how it work and which equipment like that beam splitter here virtual mirror how it work the beam splitter and why we use the beam splitter, what is the beam splitter, all these thing type of the conceptual question. I cleared that all these thing doubt in the last video lecture. So now next is that how we find the path difference of the reflected light rays from the mirror M1 and from the mirror M2. Okay, so what is the path difference between these reflected light rays? Okay, on this basis the path difference between these reflected light rays, we can find out the formula, or you can say the condition for the dark fringe and bright fringe. Okay, so that thing we can derive the formula from that diagram. Okay, so that is the uh, diagram for the find out the path difference in the Michelson interferometer. Okay, so here just I'm tilting the telescope, okay, at a some angle. Okay, in the construction uh, the telescope was placed here, okay, in the front of the beam splitter. But here I want to find out the path difference between these reflected light rays. That's why I tilted at some angle the telescope. Okay, so that the reflected light rays which are coming from the mirror M1, which is the movable, and another light ray is coming from the virtual mirror M2 dash. Okay, or that M2 dash mirror is the virtual mirror of the real mirror M2. Got it my point? Okay, so if you see in that diagram, these reflected light rays, if you concentrate and observed by the telescope and see these reflected light rays, forget about that all these equipments, the one light ray is coming from the mirror M1, okay, and a virtual image will appear at the back side of this mirror. Okay, at that virtual image, or you can say the virtual source, which is denoted by the S1 here. Okay, and another virtual source is appear at the behind of the mirror M2 dash. Okay, virtual mirror M2 dash, right? That virtual source is denoted by the S2. So we can say the incoming light rays are appear as from the virtual source S1 and virtual source S2 to the telescope. Okay, so you can say कि जो लाइट रेज टेलीस्कोप पर आ रही है और इन दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज के बीच में जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है और सर्कुलर फ्रिंजेज हमें ऑब्जर्व हो रही है, ओके, उन सर्कुलर फ्रिंजेस के लिए
यहाँ पर आप इस प्रकार से मान सकते हैं कि कोई S1 S2 जो है वो वर्चुअल सोर्सेज है जहाँ से दो लाइट रेज आ रही है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्चुअल सोर्सेज का मीनिंग जो है वो ये है कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट मिरर है, ओके, और उस ट्रांसपेरेंट मिरर के जस्ट सामने आप खड़े हैं, ओके, तो इस ट्रांसपेरेंट मिरर के जस्ट पीछे एक हल्की सी आपकी इमेज बनेगी, ओके, और ये जो हल्की सी इमेज बन रही है, ओके, सो दैट इज द रियल इमेज, योर रियल इमेज, ओके, एंड नाउ दिस वन इज द योर वर्चुअल इमेज, ओके, बिहाइंड द पार्शियल मिरर। गॉट इन माई पॉइंट? तो सेम यही मैं कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ कि वर्चुअल जो मिरर M1 है, इस मिरर M1 के बैक साइड में भी एक सोर्स जो है एपियर होता हुआ दिखाई देगा आपको टेलीस्कोप में, कि ऐसा लग रहा है कि इस मिरर M1 के पीछे कोई एक सोर्स है जहाँ से ये जो है ये लाइट जो है ये टेलीस्कोप तक आ रही है। व्हाट इज माई पॉइंट? नाउ सेकंड जो है, ये सेकंड जो लाइट रे है वो भी ये जो वर्चुअल मिरर है, इस वर्चुअल मिरर के बैक साइड से कोई एक वर्चुअल सोर्स है, ओके, S2 वर्चुअल सोर्स, और उस S2 वर्चुअल सोर्स से एक लाइट रे आ रही है जो टेलीस्कोप पर आ रही है, और इन दोनों लाइट रेज के इंटरफेरेंस से सुपरपोजिशन से ही आपको एक पैटर्न मिल रहा है, एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है, फ्रिंजेस बन रही है। व्हाट इज माई पॉइंट? Okay, so that two reflected light rays are responsible for the circular dark or bright fringes in the Michelson interferometer. That's why we have to find out the path difference between these reflected light rays. Got in my point? So यहाँ पर कैसे हमें फाइंड आउट करना है पाथ डिफरेंस, कि जो S2 है, ये जो S2 है, यह S2 से S1 से जो लाइट रे आ रही है, ये जो S1 वर्चुअल सोर्स से लाइट रे आ रही है, इस S1 वर्चुअल सोर्स से जो लाइट रे आ रही है इसके ऊपर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, और उस नॉर्मल ड्रॉ को मैं B पॉइंट से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो एक जो है ये B पॉइंट है और दूसरा है S2 पॉइंट, ओके, और इन दोनों पॉइंट से जो लाइट रे इस टेलीस्कोप तक आ रही है ये एक्चुअल में इक्वल पाथ लेंथ ट्रेवल कर रही है, ओके, सेम लेंथ कवर कर रही है ये दोनों लाइट रेज। तो इन दोनों लाइट रेज का यहाँ से यहाँ तक, ओके, और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों लाइट रेज का क्या होगा, इक्वल पाथ होगा, ओके, तो इन दोनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा पाथ नहीं है, लेकिन इस S1 से जो लाइट रे आ रही है वो एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है, और वो कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल कर रही है, S1B जो है वो एक्स्ट्रा पाथ है। व्हाट इज माई पॉइंट? तो ये एक्स्ट्रा पाथ जो है, दैट एक्स्ट्रा पाथ वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बन गया S2B S1, ओके, एक राइट ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल क्या है, S2B और S1, ये एक राइट ट्राइंगल है, और इस राइट ट्राइंगल से आप S1B कितना होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सिंपल है ये मैथमेटिक्स। S1B जो है इस राइट ट्राइंगल से वो क्या होगा, S1 S2 अपॉन S1 S2, ओके, S1 जो B है वो क्या होगा, दिस वन राइट ट्राइंगल में S1 S2 जो है वो है 2D, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वर्चुअल सोर्सेज के बीच में वो क्या है, वो 2D है। व्हाट इज माय पॉइंट? और यहाँ पर S1 S2B में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि कोस थीटा का जो फंक्शन है वो किस प्रकार से होगा, S1B अपॉन S1 SO2, ओके, तो S1B क्या हो जाएगा, S1B हो जाएगा S1 S2 cos थीटा, ये हो जाएगा इसमें, ओके, और S1B क्या है, S1B इज द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस।
गोट इट माई पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला वो ध्यान से देखिए, इसमें जो फॉर्मूला होगा वो होगा ये जो S1B है, ये S1B एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है, और ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 2D cos थीटा। तो 2D cos थीटा जो है वो पार्ट डिफरेंस है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर का पार्ट डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर एक और हमें कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, यू हैव टू अप्लाई अनदर कंसेप्ट। सो इफ यू नो अबाउट द स्टोक्स लॉ, ओके, स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई एक लाइट रे, जैसे कि एक लाइट रे है, ये कोई डेंसर मीडियम है, ओके, तो इस डेंसर मीडियम से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होकर और रिफ्लेक्ट बैक होती है, ओके, ये कोई डेंसर मीडियम है, इस डेंसर मीडियम पर लाइट रे इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्ट बैक, तो ये जो रिफ्लेक्टेड बैक है फ्रॉम द डेंसर मीडियम, ये जो लाइट रे, ये इससे इनकमिंग लाइट रे से λ/2 के पाथ, एक्स्ट्रा पाथ पर ट्रेवल करेगी, ओके, मतलब इनके दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो λ/2 का पाथ डिफरेंस होगा अगर कोई लाइट रे अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ, ओके। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम पर अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम पर इंसिडेंट होती है और फिर अगर उससे रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है फ्रॉम द डेंसर मीडियम, ये इस इनकमिंग लाइट रे से λ/2 एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करती है, ओके। तो ये एक एक्स्ट्रा पाथ है। अब यही सेम सिचुएशन अपने यहाँ पर है, यहाँ पर एक लाइट रे जो है वर्चुअल मिरर है, ये वर्चुअल मिरर से जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है वो रेरे मीडियम से रेरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, ओके। तो इसका मीडियम तो सेम है, लेकिन जो रियल मिरर से, ये जो M1 मिरर है, इससे जो लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है, तो मिरर क्या है, एक सॉलिड सरफेस है। इट मीन्स है मिरर M1 से जो लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ये M1 मिरर से ये क्या कर रही है, डेंसर मीडियम टू रेरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है। इसलिए हमें यहाँ पर स्टोक्स लॉ अप्लाई करना होगा, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ द इफेक्टिव पाथ, अब मैं इसे जो पाथ डिफरेंस डेल्टा से मैं जो डिनोट कर रहा हूँ, इस डेल्टा को अब मैं इफेक्टिव, टोटल इफेक्टिव पाथ डिफरेंस से डिनोट कर रहा हूँ, ओके। तो ये 2D cos थीटा, तो ये दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया है, लाइक, ओके। और स्टोक्स लॉ से λ/2 एक एक्स्ट्रा पाथ और होगा, ओके, λ/2 से एक एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल होगा, गॉट इट माय पॉइंट। तो नेक्स्ट जो है टोटल इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, वो टोटल इफेक्टिव पाथ डिफरेंस आफ्टर द यूजिंग द स्टोक्स लॉ, वो क्या हो जाएगा, डेल इफेक्टिव इज इक्वल टू 2D cos थीटा, ओके, प्लस λ/2। ये प्लस λ/2 यू कैन यूज बोथ साइन प्लस और माइनस, ओके, don't worry about that bother, okay। So the total effective path difference will be the 2D cos theta plus minus λ/2, got it my point। तो ये इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर का टोटल इफेक्टिव पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होगा, ओके। सो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर नाउ। अब हमें जो इस रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है, जो मिरर M1 और वर्चुअल मिरर M2 डैश से जो रिफ्लेक्टेड बैक लाइट रे है, उनसे जो इंटरफेरेंस बन रहा है, उनके सुपरपोजिशन से जो इंटरफेरेंस बन रहा है, और उससे हमें क्या मिल रहा है, तो एक सर्कुलर फ्रिंजेज मिल रही है। तो ये ब्लैक एंड वाइट में जो सर्कुलर फ्रिंजेज मिल रही है, तो उनकी कंडीशन क्या होगी, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन और कैलकुलेट द फॉर्मूला for the bright fringe or for the dark fringe, got it my point। So for the bright fringe द फॉर्मूला क्या होगा, तो हमें इसके लिए हमें एक कंसेप्ट याद रखना पहले होगा। एक तो कंसेप्ट है यंग्स थ्योरी। यंग्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, यंग्स इज द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द ऑप्टिक्स, गॉट इट माय पॉइंट। इंटरफेरेंस टेक्निक का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो यंग्स है, ओके, यंग्स थ्योरी। तो यंग्स थ्योरी आपको हमेशा याद रखना है, ओके। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द यंग्स थ्योरी, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस फॉर्मूला फॉर द ब्राइट फ्रिंज इज द एन लैम्डा, ओके। यंग्स ने कहा था कि कोई भी ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, लैम्डा, एन लैम्डा का होना चाहिए। एन इज द इंटीजर, व्हाट इज माय पॉइंट, 0 1 2 3 लाइक दैट, ओके। तो ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। अब हमारे माइकलसन जो इंटरफेरेंस है, उस माइकलसन इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया था, इसमें आया था 2D cos थीटा प्लस λ/2। ये तो हमारे इसमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर का पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला था। और यंग्स के अकॉर्डिंग ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है,
एन लैम्डा है, तो यू हैव टू पुट इक्वल टू एन लैम्डा. ओके, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द ब्राइट फ्रिंज? The del effective is equal to 2d cos theta is equal to 2n minus 1 lambda by 2. ओके, तो ये इफ जो है ब्राइट फ्रिंज का पार डिफरेंस का फॉर्मूला होगा. ओके, सिंपल है मैथमेटिक्स. यहाँ से लैम्डा बाई 2 आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, और इसी को आप लिख सकते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. गोटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ऐसे ही सिंपल है फॉर द ब्राइट फ्रिंज. डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या होगा उसके लिए, और उसके लिए हमें यंग्स थ्योरी अप्लाई करनी होगी. और यंग्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डार्क फ्रिंज है, उस डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला क्या है? 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. ओके, तो हियर यू कैन ऑल्सो पुट हियर 2n प्लस माइनस 1. ओके, दैट वैल्यू लैम्डा बाई 2. ओके, लाइक दैट. सो प्लस माइनस में से मैं एक प्लस साइन यहाँ पर सेलेक्ट किया है. ओके, तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2. अब इस लैम्डा बाई 2 को इधर ट्रांसफर करोगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी? ये इक्वेशन बनेगी. गॉट इन माई पॉइंट? तो यहाँ पर जो इफेक्टिव पावर डिफरेंस होगा डार्क फ्रिंज के लिए, वो होगा 2d cos थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डार्क फ्रिंज के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर में पावर डिफरेंस का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला है ब्राइट फ्रिंज के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर में पावर डिफरेंस का फॉर्मूला. ओके, तो दैट बोथ फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग, बिकॉज ऑल दिस फॉर्मूला वी can apply in the numericals. Okay, and now numericals is very important for the Michelson interferometer. Okay, so thank you very much.